دور تک جاتی سنسان ویران سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اجنبی شہر اور کوئی جان پہچان والا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنے چاروں اطراف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ کیا کرتا؟ غربت نے اسے شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں کوئی ایسا کام تھا ہی نہیں جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئی تھے۔ اب حارث ہی گھر کا بڑا تھا۔ ماں نے اسے شہر آنے سے پہلے سمجھایا تھا، مگر حارث کے سر پر شہر آ کر نوکری کرنے کا بھوت سوار تھا۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے حارث، جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب کر ہی دے گا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے اپنے انجانے راستے کی طرف چلنے لگا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ کسی پتھر سے ٹکرایا تھا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے تو بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ بات سنو بیٹا۔ اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز پر وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ پیچھے پلٹے بغیر تیز تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی حارث کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو مت، میں ادھر ہی کا رہنے والا ہوں۔ وہ بوڑھا آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں ڈر کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر تم پر پڑی۔ اس جگہ نئے معلوم ہو رہے ہو؟ جی میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں۔ حارث ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا، لیکن میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ بیٹا رہائش کی تم فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تم رات میرے گھر رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حارث کی خوشی دیدنی تھی۔ لیکن کرایہ کیا ہوگا آپ کا؟ بیٹا کرائے کی فکر نہیں کرو، جب تک دل چاہے رہنا۔ بیٹا گھر میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں، ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حارث کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کی اتنی بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا خستہ حالت کا لگ رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول عجب ٹھنڈک لیے ہوئے تھا۔ بڑا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ کیٹ حارث کو وحشت سے گھور رہی تھی۔ کیٹ کی نظروں سے حارث کو عجیب ہی وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں لگی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑھا۔ سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ حارث بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور کمرے کے برابر میں ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے، بوڑھا آدمی کمرے کی جانب جاتے ہوئے بولا۔ اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں بس سونا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ حارث سارے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا تھا، کونے میں سنگل بیڈ رکھا تھا اور بیڈ کے سامنے 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ حارث ایک طرف بیگ رکھ کر نہانے چلا گیا۔ نہا کر آیا تو خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی سیڑھی کی جانب کھلتی تھی، اسی کمرے میں دوسری کھڑکی بھی تھی جو روٹ کی جانب کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو کھڑکی سے نظر آتے قبرستان کی طرف اس کی نظر پڑی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ تھی، اسی لیے لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح آنکھ اس کی دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔
वो जल्दी से उठा तो वो बूढ़ा इसे खिड़की से झांकता दिखाई दिया। बेटा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो वो बूढ़ा हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था। बेटा नाश्ता करके नीचे आ जाना। नाश्ता करने के बाद हारिस नीचे चला आया, जहां सहन में वो कल वाली औरत तख्त पर विराजमान थी और पास इसके वो बूढ़ा बैठा था। आ जाओ बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत हारिस की जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम सईदा है और उनका नाम शुएब है। वो बूढ़ी बोली, बेटा कुछ अपने बारे में तो बताओ। अम्मा मेरा नाम हारिस है, आवर में गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूं। अच्छी बात है बेटा, तुम यहां आराम से रहना, खाने पीने के बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया अम्मा, मैं आप दोनों का बेहद मशकूर हूं। इस अजनबी शहर में आपने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूं, नौकरी की तलाश में मेरे लिए दुआ करें कि कोई माकूल नौकरी मिल जाए। थोड़े ही दिन बाद हारिस को एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। शाम के वक्त वो बूढ़ा बूढ़ी बातें कर रहे थे तो हारिस का बाहर जाने का मन किया। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। कहां जा रहे हो बेटा? शुएब ने पूछा। जी मैं बाजार जा रहा हूं, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे और हालात भी ठीक नहीं। तुम ऐसा करो, तुम कल चले जाना, अभी तो मैं तुम्हें दरवाजा खोलने की भी इजाजत नहीं दे सकता। हारिस ये सुनकर चुपचाप अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अच्छी मुसीबत है यार, अभी तो रात के 9 ही तो बजे हैं। कैसी मुसीबत है कि अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता। मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, डाकू आ जाएंगे, जैसे डाकू उन्हें की ताक में बैठे हों। हारिस जलता भुनता बड़बड़ाता हुआ बेड पर आकर बैठ गया। इसे वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस बूढ़े मियाँ बीवी के रोकने पर गुस्सा आता था। बिस्तर पर लेट लेट कर वो बेजार हो गया तो कब्रिस्तान की तरफ वाली खिड़की की जानिब बढ़ा। काफी सुनसान इलाका था, आबादी भी बहुत कम थी। हारिस ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो 2 लड़कियां इसे नजर आई जो कब्रिस्तान से गुजर रही थी। वो हारिस की तरफ देख रही थी और हाथ के इशारे से हारिस को बुलाने लगी। हारिस बहुत हैरान हुआ कि इतनी रात को लड़कियां यहां क्या कर रही हैं। हारिस ने घबराते हुए खिड़की बंद कर दी और कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे झांकने लगा। सहन में कोई नहीं था। वो दबे कदमों नीचे आ गया और आहिस्ता से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। पलटकर यकीन दहानी के लिए देखने लगा कि कहीं वो बूढ़ा बूढ़ी तो नहीं जाग रहे। अभी वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी कैट गुर्राई और हारिस पर हमला कर गई। हारिस इस अचानक हमले पर तैयार न था। वो एकदम सकपटा सा गया। वो काली सिया कैट हारिस को घोर कर देख रही थी। हारिस जल्दी से उठा और अपने कमरे की जानिब भागा तो पीछे से किसी निस्वानी कहकहे की आवाज पर वो बदहवास हो गया, जैसे इसके इरादे नाकाम बनाने पर कोई हंस रहा हो। वो दरवाजा बंद करके बुरी तरह हाँफने लगा और बहुत खौफ महसूस करने लगा। कहीं फजर के वक्त जाकर हारिस की आंख लगी। दूसरे रोज वो ऑफिस से घर आते हुए पीछे से आती हुई निस्वानी आवाज पर पलट कर देखने लगा। कैसे हैं आप? पीछे वही 2 लड़कियां थी रात हारिस ने जिन्हें खिड़की से देखा था। हमने तो आपको हाथ हिलाया था, लेकिन आपने तो ऐसे डर के खिड़की बंद कर दी जैसे हाथ न हिलाया हो कोई गोली मारी हो। वो शौक से लड़की मुस्कुराते हुई बोली। अब हारिस की अक्सर आते जाते इन लड़कियों से मुलाकात हो जाती। जिस वक्त हारिस ऑफिस से आता था तो वो लड़कियां भी इसी वक्त एकेडमी से पढ़कर आती थी। हारिस को शौक व चंचल सी हिराच्छी लगने लगी थी। वो अब घर की तरफ से भी मुतमईन था। पाबंदी से अपने गांव पैसे भेजता था। गांव में सभी हारिस की नौकरी से खुश थे, क्योंकि घर के हालात अब बेहतर होने लगे थे। एक बार हिरा ने हारिस से रात को मिलने की फरमाइश की। खुरुत्तम मेरे मालिक मकान को नहीं जानती, शाम के बाद वो मुझे घर से निकलने नहीं देते और मेरी चौकीदारी के लिए वहां एक कैट भी मौजूद है जो मेरी ताड़ में रहती है। हारिस कैट वाला वाकया सुना ही रहा था कि हुरिक के साथ खड़ी सहरिश जोर से हंस दी। इसके हंसने पर वो मुंह बनाने लगा। खैर हारिस मिलने की हामी भरते हुए घर चला आया और रात जब शुएब अंकल खाना लेकर ऊपर आए तो वो सोने के एक्टिंग करने लगा। कुछ देर बाद वो सहन में झांक कर नीचे देखने लगा कि कोई है तो नहीं और इत्मीनान से वो नीचे चला आया। वो दोनों मियाँ बीवी सोने के लिए कमरे में जा चुके थे।
اس نے सहन में लगे दरख्त की जानिब पलट कर देखा तो वहां कैट भी मौजूद नहीं थी। दरवाजा खोला और वो बाहर चला आया। वहां हिराइस का इंतजार कर रही थी। सहरिश नहीं आई। सहरिश को इसके साथ ना पाकर वो बोला, नहीं हारिस। वो बोल रही थी कि मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूंगी, तुम जाओ। हिरा शरारत से आंख मार के बोली। इसकी बात पर वो हंस कर देखने लगा जो वाकई ही में बहुत खूबसूरत थी। आओ हारिस, पार्क में चलते हैं। हिरा इसे सामने कब्रिस्तान में बने पार्क में ले आई। इतनी रात में वो कब्रिस्तान जाते हुए डर रहा था। हारिस, डरो मत, इस कब्रिस्तान के बाद पार्क है। वो हुर्रिक के साथ पार्क में चला आया। हिरा इसे अपने बारे में बताने लगी कि सहरिश और मैं दोनों सहेलियां हैं और दूसरे शहर से तालीम की गरज से यहां आए हैं। बातों बातों में वक्त का पत्ता ही नहीं चला कि हारिस ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे। उफ, इतनी देर हो चुकी है। हारिस घबरा कर खड़ा हो गया। हाँ चुल्लू, सहरिश भी मेरा इंतजार कर रही होगी। हुर्रा भी उसके साथ खड़ी हो गई। दोनों बातें करते पार्क से बाहर निकल आए। कब्रिस्तान में खड़ा गोरकन हारिस की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों से खाइफ होता हारिस हिरा को खुदा हाफिज कहता घर आ गया। घर में दाखिल होते इसकी नजर दरख्त पर बैठी कैट पर पड़ी। कैट हारिस को ही घोर रही थी। तुम्हें मना भी किया था, इतनी रात भर घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, पर तुम हो के सुनते ही नहीं हो। उफ, अम्मा जाग रही हैं। वो सर पकड़कर ही रह गया। अब आ गए हो तो खाना खा लो। तुमने रात खाना भी नहीं खाया था। तख्त पर खाना रखा है। बावर्ची खाने से सईदा अम्मा की आवाज आ रही थी। हारिस शर्मिंदा होते हुए तख्त पर पड़े खाने की तरफ बढ़ गया और वहीं बैठकर खाने लगा। उसे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। खाने के बाद वो बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गया। अम्मा जी, मैं मुआफी चाहता हूं, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और खाना बहुत मजेदार बना था। हारिस के ये अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे क्योंकि वहां तो कोई मौजूद ही नहीं था। हारिस खौफजदा नजरों से अम्मा के कमरे की जानिब देखने लगा तो अम्मा बेड पर सो रही थी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हारिस घबराता हुआ अपने कमरे में चला आया। दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी थी। दोनों बूढ़ा बूढ़ी तख्त पर बैठे थे। मैं उनके पास चला आया। अब दोनों की शादी को कितने साल हो गए? बेटा 50 साल हो गए हैं जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। औलाद के लिए बड़ी दुआएं मांगी मगर औलाद नहीं हुई। वो माजी को सोचते हुए आबदीदा हो गए। बेटा मेरे तो बस यही बच्चे हैं। वो दरख्त पर बैठी बिल्लियों की जानिब देखते हुए बोली। अम्मा, आपको बिल्लियां बहुत पसंद हैं क्या? हाँ बेटा। वो मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश हो गई। तो हारिस दरख्त पर बैठी बिल्लियों की तरफ देखने लगा। इनमें से एक कैट की आंखों में अजीब सी चमक थी। हारिस देखते हुए झुरझुरी लेकर रह गया। तुम्हारे अंकल को बोला था मैंने, दूसरी शादी कर लो औलाद के लिए, लेकिन माने ही नहीं। हारिस बोला, अब ही से मोहब्बत करते होंगे ना? सईदा मुंह पर दोपट्टा लेकर हंसने लगी। अम्मा जी, ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? बेटा ये इलाका शुरू ही से सुनसान है, आबादी तो यहां है ही नहीं। हारिस खामोश हो गया। देर रात को हारिस की अचानक आंख खुली तो नीचे सहन से आती बातों की आवाज पर वो हैरान हुआ कि इस वक्त नीचे कौन है। वो आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे झांकने लगा तो सहन में शादी का समा था। पूरा सहन रोशनियों से जगमगा रहा था। औरतें जर्द बर्क लिबास पहने हुए थी। हारिस ने गौर किया तो तख्त पर एक लड़की दुल्हन बने नजर आई और उसके आसपास काफी लड़कियां तैयार हुई बैठी थी। खाने की लजीज खुशबू सारे घर में फैली हुई थी। एक तरफ खाने की देगें रखी हुई थी। सीढ़ियों पे खड़ा हारिस ये सब हैरानगी से देख रहा था। आजा हारिस बेटा नीचे। शुएब अंकल की हारिस पर नजर पड़ी तो वो हारिस को बुलाने लगे। हारिस नीचे आ गया। बेटा ये हमारे पड़ोस की बच्ची है, इसकी शादी है। तुम्हारी आंटी सईदा ने बोला था कि बच्ची की रुखसती हमारे घर से ही होगी, क्योंकि बचपन से ही ये बच्ची हमारे घर आती जाती है। अंकल की बात पर हारिस बूढ़ी अम्मा की जानिब देखने लगा जो शादी के हर काम में आगे आगे थी। खाना लगा तो हारिस भी खाना खाने बैठ गया। इतना लजीज खाना था कि हारिस को अब नींद आने लगी थी।
दूसरे दिन ऑफिस भी जाना था तो वो सोने के लिए ऊपर कमरे में दाखिल हो गया। उसे लगा कि उसके पीछे पीछे कोई आया है। गुलाब की तेज खुशबू उसे महसूस हुई। हारिस जो कि बिस्तर पर दराज था घबराकर उठकर बैठ गया। निस्वानी कहकहे इसकी समातों से टकराए। कौन है? हारिस ने डरते डरते पूछा। वो खौफज़दा अपने चारों तरफ देखने लगा, मगर वहां कोई न था। पूरी रात उसे लगा कि कोई निस्वानी हाथ उसे सर से हिलाता रहा है। फजर के वक्त तक यही सब होता रहा। ऑफिस में भी हारिस से काम न हो रहा था क्योंकि रात भर वो सो ना सका था। शाम वापसी पर घर की तरफ आते हुए हुर नजर आ गई। हिरा को देखते ही हारिस की सारी थकान दूर हो गई। वो थोड़ी देर पार्क में बैठकर इससे बातें करने लगा। हिरा, तुम्हें पता है कल मेरे मालिक मकान के घर में इसकी पड़ोसन की शादी थी। दुल्हन बनी लड़की को देखकर मुझे ख्याल आया कि एक दिन तुम भी मेरी दुल्हन बने बैठी होगी। काश। हिरा धीरे से बोली। क्या मतलब? वो नासमझी से बोला। काश ऐसा हो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनूं। फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। मैं कुछ दिनों तक अपने गांव जाऊंगा तो तुम्हारी और अपनी शादी की बात करूंगा। हारिस, क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हिरा, मैं वादा करता हूं कि शादी तुमसे ही करूंगा। घर आकर हारिस बैग वही पैक करने लगा क्योंकि परसों वो गांव जा रहा था। आज रात भी हिरा ने इसे पार्क में मुलाकात करने का कहा था। हुर से रात को मुलाकात के बाद पार्क से वापसी पर हारिस किसी पत्थर से टकराया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसने जल्दी से मोबाइल की टार्च जलाई। मोबाइल की रोशनी सीधी कब्र पर पड़ी। हारिस की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। कब्र की तख्ती पर लिखा था शोएब खान। वो बमुश्किल खड़ा हुआ तो उसी कब्र के बराबर में एक और कब्र थी जिस पर लिखा था सईदा शोएब। हारिस को लग रहा था कि अब वो बेहोश होकर रह जाएगा। भाई, क्या हो गया? पीछे से गोरकन की आवाज आई। वो ये कब्र। हारिस के टूटे फूटे अल्फाज उसके मुंह से निकल रहे थे। हाँ भाई, ये दोनों मियां बीवी थे, सामने वाले घर में रहते थे। गोरकन इस घर की तरफ इशारा करने लगा जहां हारिस रह रहा था। आज से 5 साल पहले शोएब साहिब के घर में डाकू घुस आए थे और बेरहम डाकुओं ने शोएब और उसकी बीवी सईदा को कत्ल कर दिया था। भाईजान, ध्यान रखा करें, हालात आगे ही बहुत खराब हैं। यहां डाकुओं का बसेरा है। हारिस को बेसाख्ता अम्मा के अल्फाज याद आ गए। इतना डरे हुए क्यों हो? नहीं भाई, कुछ नहीं। हारिस भागा घर गया। मुझे किसी भी हाल में अभी के अभी यहां से निकलना होगा। हारिस खौफ से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ और तेजी से अपने कमरे में दाखिल हुआ। अपना सामान समेट ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो हारिस मजीद खौफजदा हो गया। सीढ़ी वाली खिड़की से देखा तो सामने हुर खड़ी थी। तुम यहां कैसे? हारिस पसीना साफ करते हुए बोला। हारिस, मैं भी तुम्हारे साथ चिल्लूंगी। हारिस हुर की ये बात सुनकर जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा। तभी हारिस के दिमाग में धमाका हुआ। हिरा, तुम्हें कैसे पता कि मैं जा रहा हूं? हारिस पास खड़ी हुर से पूछने लगा। तभी अचानक सहरिश बोली, हुर, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम उस तरह अपने कबीले की नाफरमानी नहीं करोगी। हारिस, हिरा ने आपको हकीकत बताने से मना किया था, मगर मेरे ख्याल से आपको हकीकत से वाकिफ कर देना चाहिए। हुरिक के लाख रोकने के बावजूद सहरिश बताने लगी, हमारा ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है और बाहर सहन में लगे दरख्त पर हम बहुत अरसे से रह रहे हैं। जो बिल्लियां आपको दिखाई देती हैं वो हम ही हैं। पहले दिन जब अपने इस घर में कदम रखा था तो पहली नजर ही में हिरा आपकी दीवानी हो गई थी। मैंने तो हिरा को बहुत रोका कि अगर वो आपके साथ जाएगी तो हमारे कबीले के बड़े तो हिरा को मार ही देंगे और साथ ही आपकी जान को भी खतरा है। सईदा आंटी जब यहां बया कर आई थी तो उन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल चुका था। इनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए हम ही उनकी बेटियों की तरह हैं। लेकिन वो दोनों भी कब के मर चुके हैं। ये घर खाली वीरान खंडर है, उधर कोई जिंदा इंसान नहीं है। इस रात जो आपने शादी देखी थी वो हमारे ही कबीले की लड़की की शादी थी। हारिस को लग रहा था कि किसी भी वक्त उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। हारिस का सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था।
हारिस तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम हमारे बेटे की तरह हो। शुएब अंकल सीढ़ी चढ़कर ऊपर आने लगे। हारिस ने खौफजदा होकर दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह पाक मेरी मदद कर, मैं कहां जिन्नात में फंस गया हूं। हारिस फूट फूट कर रोने लगा और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगा। कलिमा पढ़ने लगा, आयत अल कुर्सी पढ़ने लगा। पूरी रात वक्फे वक्फे से दरवाजे पर होने वाली दस्तक और सईदा की सिसकती हुई आवाज, उसको जाने मत देना, मैं इसे किसी भी सूरत में जाने नहीं दूंगी, मेरा कोई बेटा नहीं है, हारिस अब मेरा बच्चा है। बूढ़ी सईदा की आवाज हारिस के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी और साथ में निस्वानी बैन करती हुई आवाज जो हो रिक्की थी। हारिस, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे ही शादी करोगे, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे हरगिज जाने नहीं दूंगी। हारिस दोनों हाथों से कानों को जकड़े दरवाजे पर पुष्ट लगा खड़ा था और कलमा पढ़ता रहा। फजर के वक्त आवाजों का सिलसिला खत्म हुआ। उसने दरवाजा खोलकर नीचे झांका जहां अब बिल्कुल खामोशी थी। वो अंधाधुंध सीढ़ियां उतरता दरवाजा खोलकर बाहर की जानिब भागा। वो बुरी तरह और पूरी जान से बस भागे ही जा रहा था। भागता भागता सड़क की जानिब आते हुए आसमान की तरफ देखा और शुक्र के आंसू उसके गाल पर थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा बचकर आ गया है। ये सोचकर इसके रोंगटे खड़े हो रहे थे कि वो 6 महीने जिन्नात के साथ रहा है। आज इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं और आज 8 साल बाद वो अपनी मां और बीवी बच्चों के साथ शहर में मुकीम है। आज किसी काम से जब वो अपनी बीवी के साथ इसी सुनसान इलाके से गुजरा तो इत्तेफाक से इसी घर के पास से इसका गुजर हुआ। घर के पास से गुजरते हुए इसके पूरे जिस्म में एक सर्द की लहर दौड़ गई। आज भी वो घर वैसे ही वीरान पड़ा था। हारिस की निगाह बे-इख्तियार इस कमरे की खिड़की की जानिब उठी जहां इसने 6 माह क़याम किया था, मगर वहां के मंजर ने इसे दहशत से खौफजदा कर दिया। हिरा खिड़की में खड़ी मुस्कराती हुई हाथ हिलाते हुए दिखाई दी। हारिस ने खौफजदा हैकर अपनी निगाहें नीचे की और कलिमा पढ़ते हुए गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और इस इलाके से बाहर निकल गया।